जलौकां दधतमृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरित्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरित्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं, मैं वैद्य सचिन मारुति भोर एमडी आयुर्वेद, डायरेक्टर सुलभा श्री साईनाथ आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक एंड आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक एंड फर्टिलिटी सेंटर रावेत। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग अपना अपना माइक बंद कर दीजिए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, म्यूट ऑल। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सेशन अपना जो शुरू होने जा रहा है, कि आज से जो शुरू हो रहा है,
इसमें पंचकर्मा का सेशन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इस सेशंस में ये कहना भी है कि हम क्या क्या लेने वाले हैं। एक्चुअली मैं एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस करने वाला प्रैक्टिशनर हूँ। तो फोटो दिखाओ। गए 18 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आयुर्वेद का शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा में 18 साल से कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थीगण आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को इधर आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में इन दिस कंडीशंस we have planned online sessions, online workshop sessions we have planned. So this is the one of the session in that we will try to execute and show you the maximum panchakarma procedures. But before that, outside Maharashtra like UP, Bihar, Madhya Pradesh, Delhi, Uttarakhand, Jharkhand, Hyderabad, Karnataka also, Karnataka, Belgavi, Karnataka. In these areas, Ayurveda practice are not in a full form condition as in the Maharashtra. इन 18 सालों में मैं जितना भी घुमा हूँ ऑल ओवर इंडिया में, झारखंड से लेके बिहार तक, यूपी से लेके उत्तराखंड तक, सो वी फाउंड मोस्टली practical approach of Ayurveda practice is very lack. Since 3 years I am trying these online sessions. Before that I mostly prefer to student come to my clinic, see the procedures and study the Sahitas with my ongoing practice. So I have just closed my OPD, and between 2 to 4 or 2 to 3:30 I get a time. I utilize that time to discuss with my patients. Now in front of me also there are many students are sitting there. So mostly we plan for discussions on the topic. And last year also we have taken Rog Nidan and Chikitsa 1 year workshop, where in 1 year we have taken lots of 4010 अगले हफ्ते में देते हैं, ठीक है? हाँ, अगले हफ्ते में आप थोड़ा सा माइक बंद कर दीजिए। सो स्नेहन विधि में आज हम बात करने वाले हैं पंचकर्म में स्नेहन विधि के बारे में। सो व्हाट इज स्नेहना एंड व्हाट इन दिस 1 month सेशन व्हाट वी विल बी गोइंग टू टेक, वी विल टेक स्नेहन विधि, अ प्रॉपर स्नेहन विधि, अ प्रिपरेशन ऑफ स्नेहना, मेकिंग ऑफ स्नेहना, हाउ टू डू स्नेहना, what are the pre-operatives of Snehana, post-operatives of Snehana, and operational methods of Snehan Vidhi. Same thing in Svedana also, pre-operative, operative and post-operative. Same thing about Vamana, Virechana, Basti, Raktamokshana, Shirodhara, Nasya and all Upakarma like Agni Karma, Prashan Karma, Vidya Karma, all upakarmas we are lepana chikitsa, marma chikitsa, these all methods of panchakarma and upakarmas of panchakarma we are going to discuss and see practically in this 1 month or one Thank you. एक महीने के ऊपर भी जा सकता है. It will go for more than it can be go for more than 1 month also. Okay, so today's session in the morning in a group I have sent some videos because the medicine preparation panchakarmas are continue going in my clinic. So in that small 1.5 minutes का मैंने कुछ videos I have uploaded in the group that will you make understand that what we actually going to talk. Okay, so before that स्नेहन के बारे में बात करने से पहले we need to understand what mainly Snehana will work on body. वो किस प्रकार से, in how many ways Snehana work on the body. Snehana स्निग्धता रहता है, उसमें मृदुता रहती है. Snehana can be
मोस्टली जो हम स्नेहन में जो यूज़ करते हैं वो ऑयल यूज़ करते हैं, वो भी स्निग्ध रूप से होता है। ओके, तो उसमें जो गुणधर्म है, जैसे कि तिल का तेल हम बेस लेवल पे जो हम तिल का तेल यूज़ करते हैं, तो पंचकर्म के प्रैक्टिस में अगर किसी को पंचकर्म का प्रैक्टिस करना है तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक योर ओन बेस लेवल ऑयल प्रिपरेशंस। आज के सेशन में मैंने आपको बला अश्वगंधा दशमूल का जो तेल का प्रिपरेशन था वो मैंने आपको बताया, वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। नमस्कार, अभी हम बला अश्वगंधा दशमूल तेल जो बनाने जा रहे थे उसके प्रपोर्शन के बारे में बात करेंगे। अभी हम कषाय बना रहे हैं। इस कषाय में हमने 1 भाग द्रव्य लिया है, 16 भाग पानी लिया है और इस 16 भाग को 8 भाग में हम रखेंगे। यानी कि अंदाज से 200 ग्राम का भरण है, 200-250 ग्राम का भरण है। 16 भाग 3000 मतलब 3 लीटर का हमने पानी लिया है, उसको आधा करके हम 1200 से 1500 ml तक हम रखेंगे। उतनी ही मात्रा में 1200 से 1500 की ml मात्रा में ही हमने तेल लिया है, तिल का तेल। ठीक है, एक बार ये कषाय बन गया तो ये कषाय को हम छान के तेल में डालेंगे और फिर तेल को हम पाक होने के लिए रखेंगे। तो इस प्रकार से स्नेह विधि तैयार होने वाली है। ठीक है, जो स्नेहन कर्म में, बाह्य स्नेहन कर्म में यूज होती है। धन्यवाद। तो यहां पे हमने देखा कि आपको कोई भी ऑयल अगर बनाना है, मोस्टली पंचकर्म में जो तेल यूज होता है वो मूर्छित तेल हमें यूज करना है। जो तेल हमने दिखाया वो मूर्छित है। मूर्छित तेल माने कि जो मोस्टली हम कच्चे घानी के जो कॉम्प्रेस्ड तेल का तेल लेके आते हैं उसमें बहुत सारे दोष होते हैं। उस दोषों को निकालने के लिए रक्तपाचक दवाइयों से, यानी कि मंजिष्ठा, लोद्र, मुस्ता, चंदन, उशीर, वाला, ऐसे जो वनस्पति है, हल्दी, नागरमोथा, इन वनस्पतियों 7 मूर्छित द्रव्य जो है, इन वनस्पतियों को भी 1 भाग लेंगे। समझो हमने 1 लीटर के लिए हमने 1 भाग लिया है, 16 भाग पानी लेंगे। ठीक है, 200 ग्राम का भरड़ लिया, 16 भाग 3200 ml और उसको आधा करो 1600 ml और 1600 ml ही तिल का तेल लेंगे। ठीक है, यही अगर आपको दूध डाल के अगर शिरपाक बनाना होगा तो आपको पहला कषाय बनाओ, मतलब 1600 ml का कषाय बना, छाना हुआ कषाय, उसमें 1600 ml उसमें हमने द्रव्य कितना है 200 भाग है, उसका 8 पट माने 16, मतलब 1600 ml ही तेल लेंगे। 1600 ml का कषाय, 1600 ml का तेल। ठीक है, और बचा अगर आपको दूध डालना है तो वो भी आप 1600 ml दूध डाल के तीनों भी समभाग मात्रा में शिरपाक बना सकते हैं। शिरपाक में अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं। कोई शतपाकी, दशपाकी, इस प्रकार के शिरपाक बनाता है। उसमें दूध एक बार पूरी तरह से खत्म हो गया, उसको उबालने के टाइम फिर से उतने ही मात्रा में 1600 ml फिर दूध डालते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर उसको ख़त्म करते हैं, फिर ऐसे 10 बार किया जाता है, जिससे उसका गुणधर्म जो है और ज़्यादा बढ़ता है। अभी जो हमने जो बनाने के लिए रखा है वो पूरी तरह आज नहीं बनेगा। ठीक है, उसका हमने कषाय अभी बनाया है, कषाय अभी हमने बनाया है। उस कषाय को हम तेल में डुबो के डालेंगे, मिक्स कर देंगे, मतलब 1600 ml तेल, 1600 ml वो कषाय उसमें डाल देंगे। आज दिन भर वो कषाय उसमें डूबता हुआ रहेगा, पूरा भीगा हुआ रहेगा, जिससे रात भर में उसका गुणधर्म और उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो एब्जॉर्ब हो जाने के बाद कल हम उसको बनाएंगे। तो उसका जो स्नेह पाक का जो विधि होती है, जैसे कि पूरी तरह से स्नेह बना हुआ है या नहीं है, वो किस प्रकार से चेक करते हैं वो भी हम कल देखेंगे। लेकिन लेक्चर हमारा हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही है। ठीक है, तो स्नेहन को समझ, मतलब आज का लेक्चर हो जाने के बाद गुरुवार को लेक्चर होगा, हफ्ते में सिर्फ 2 बार लेक्चर है, क्योंकि इतना वक्त मुझे नहीं मिलता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्नेहन जो सही प्रकार से जो स्नेहन होता है, जैसे अभी वात व्याधि का पेशेंट है, रुक्षता ज़्यादा है,
ठीक है। जैसे कि अभी जो मेरे पास सुबह जो पेशेंट था लंबार स्पॉन्डिलाइटिस का, एन्युलर बल्जिंग है उसको, और इस पेशेंट में इस पेशेंट में अगर हमें उसमें नाड़ी में अवरोध है, ठीक है, क्षयावस्था भी है, अवरोध भी है, अवरोध ज़्यादा है, कफ की नाड़ी उसमें ज़्यादा दिखती है। इसके पहले बस्ती से पहले मैंने उसको विरेचन दे दिया है, मैंने उसको विरेचन भी दिया है। तो विरेचन के बाद उसका जो शरीर जो बहुत ही हेवी था, उसमें जो जितने अवरोध थे वो थोड़ा कम हो चुके हैं, और विरेचन में उसको वमन भी हुआ, विरेचन भी हुआ, दोनों भी चीज़ें उसको हुई, ठीक है। उसके बाद हमने उसको अभी बस्ती के लिए लिया है। आज हमने उसको तिक्त शिर का बस्ती दिया है। तिक्त शिर, पटोल, आनंद, पटोल, वासा, नीम, अमृता, रिंगनी मूल, ये पंचनीमवादी जो होते हैं, वैसे भी 10 तिक्त गण के द्रव्य भी है, वो भी सब आप यूज़ कर सकते हो। ये तो सबसे अच्छा है महासुदर्शन चूर्ण, उसमें सारे तिक्त गण द्रव्य हैं, ठीक है। ये महासुदर्शन चूर्ण को आपको 1 कप दूध में उबाल कर छानकर अगर उसका बस्ती दिया जाता है तो वो तिक्त शीर मात्रा बस्ती होता है, वो भी अच्छा काम करता है। तो हम आज बात कर रहे थे स्नेह। तो स्नेह के जो गुणधर्म है, जैसे अभी ये वात व्याधि का पेशेंट है, इस वात व्याधि के पेशेंट को मुझे मृदु, स्निग्ध, लाघवता से बनाया हुआ, मूर्छित किया हुआ ऐसा तेल से मुझे मालिश करना है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, हम दुकान से जो या फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है, जो हमें चंदन बला, महानारायण, सहचरादि, कोट्टुम चुकादी, मुरी वेन्ना, हाँ, ऐसे बहुत सारे तेल हमको अवेलेबल करते हैं। लेकिन आप खुद अगर तेल को बनाते हैं, भले वो महानारायण हो, दशमूल हो, बला हो, शतावरी हो, ज्येष्ठ मदादी हो, बला अश्वगंधा हो, चंदन बला लाक्षादी हो, इन तेलों को आप खुद बनाओ 5-5 लीटर की मात्रा में। हम जब बनाने जाते हैं तो हम मोस्टली 15 लीटर 20 लीटर की मात्रा में बनाते हैं, जिसको बनाने को 3 दिन लगता है। एक दिन पूरा भिगो के रखते हैं, दूसरा दिन और तीसरा दिन, 3 दिन तक वो उबाल उसकी चालू रहती है। एक बड़ा कंटेनर रहता है हमारे पास, उसके ऊपर हम बनाते हैं। आज आप लोगों को बताने के लिए हमने शॉर्ट फॉर्मेट में वो तेल बनाया था, बनाने की कोशिश की थी। तो स्नेह पाक का यही है, आपको स्नेह बनाना हो, तेल बनाना हो, घृत बनाना हो, यही पद्धति है। कैसे? 1 भाग द्रव्य, 1 भाग द्रव्य, 1 भाग 8 भाग स्नेह, 1 भाग द्रव्य, 8 भाग स्नेह, 16 भाग कषाय, ठीक है। 16 भाग का मतलब द्रव्यों के 16 भाग। इसमें 2 पद्धति है, द्रव्यों के 16 भाग कषाय लो, नहीं तो द्रव्यों के 8 भाग कषाय लो। मतलब जितना स्नेह है उतना ही कषाय लो, ठीक है। जैसे अभी 16 भाग माने, जैसे मैंने 200 ग्राम का मैंने ये लिया है, क्या 200 ग्राम का भरड़ लिया है, उसका 16 भाग कितना हो गया? 3200। तो 3200 3.5 लीटर का मैंने कषाय बनाया था। मेरे को उसको 8 भाग बनाना था, मतलब मेरा प्रपोर्शन क्या है? 1, 8, 8, ये प्रपोर्शन है। तो मैंने उसको 3200 से 1600 ml तक मैंने बचा के रखा, और फिर तेल भी मैंने 1600 ml लिया, और 1600 ml का तेल, 1600 ml का कषाय, और 200 का भरण। इसी प्रकार अगर आपको घी भी बनाना हो तो यही पद्धति है। 200 का भरण लेंगे, 200 ग्राम का, 1600 ml का घी लेंगे, 1.5 किलो का घी लेंगे, 1.5 किलो का 1.5 लीटर या 2000 लीटर का कषाय लेंगे, और उसको उबालेंगे। तो इस पद्धति से स्नेह का पाक बनता है। और भी सूक्ष्मतम अगर आपको बनाना होगा, सूक्ष्मतम और भी सूक्ष्मतम, तो उसमें 1, 8, 16 जाएगा। माने 1 भाग 200 ग्राम का भरड़, 1600 ml का स्नेह और 3200 ml का कषाय हो जाएगा। उसको आटना पड़ेगा, उसको उबालना पड़ेगा, उसको उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। तो अवस्था रोगों की 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो अवरोध की अवस्था रहेगी और एक तो क्षय की अवस्था रहेगी, ठीक है। अवरोध की अवस्था अगर रहती है
अवरोध की अवस्था रहती है तो हमें मोस्टली आमावस्था या स्रोतोरोध या बलशय, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आमा अवस्था में क्या स्नेहन करना चाहिए? नहीं, ये बात समझ के लो। आमा अवस्था में स्नेहन नहीं किया जाता। लेकिन पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, ट्रिमेंडस पेन है, कोष्ठुक शीर्ष जैसा घुटनों में पानी भरा हुआ है, स्वेलिंग है, या आमज अवस्था है, अनेबल टू मूव, अनेबल टू वॉक, अनेबल टू सीट, ऐसी कंडीशन में एक स्नेह ऐसा है जो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है एरंड तेल। इस एरंड तेल को हम आमा अवस्था में भी मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या महाविषगर्भ तेल नाम का जो तेल होता है उसका भी हम इस्तेमाल वात व्याधि में आमा अवस्था में कर सकते हैं। लेकिन एरंडेल तेल मेरा सबसे फेवरेट है, मैं उसको आराम से इस्तेमाल कर सकता। नहीं तो स्नेह का इस्तेमाल नहीं करना है। और जितनी भी क्षय अवस्था होती है, मोस्टली 80% व्याधियां 60 के ऊपर, 55-60 के ऊपर जितने भी वात व्याधि के पेशेंट हमारे पास आते हैं, 80%, फिर वो सर्वाइकल हो, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस हो, बल्जिंग हो, नी पेन हो, नी टीयर हो, नी में होने वाले डिफॉर्मिटीज हो, सारे क्षय अवस्था में मोस्टली 80% रहते हैं। और जो 60 के पहले जो होते हैं, जो अविरत प्रज्ञापराध से उत्पन्न होने वाले आहार विहार के कारण अवरोध अवस्था, आमा अवस्था और अलग अलग प्रकार के वायरस के डिसीज से उत्पन्न होने वाली व्याधियां, हाँ दोस्तों, अलग अलग प्रकार के वायरस, मतलब कोई चिकनगुनिया रहेगा, कोई डेंगू रहेगा, जिसके बाद उत्पन्न होने वाली ऐसी अवस्था है, उत्पन्न होती है, या किसी ने काटा होगा, या डॉग बाइट है, स्नेक बाइट है, स्कॉर्पियन बाइट है, जिसके कारण उत्पन्न होने वाला आर्थराइटिस है। तो इन अलग अलग प्रकार के माध्यम से जो अवस्थाएं देखी जाती है, उसमें सर्वप्रथम जो हम स्नेहन करते हैं, व्हाट वी डू, स्नेहन कर्मा इन द पंचकर्म में सबसे प्रथम जो है वो है स्नेह विज्ञानम। तो स्नेह का गुण क्या है दोस्तों? स्नेह स्निग्ध है, मृदु है, गुरु है, द्रव है, गुरु है, ध्यान में रखो। कोई भी तेल लो आप, कोई भी तेल लो, वो गुरु ही रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसे बनाया जाता है, कॉम्प्रेस करके बहुत गुरुता से उसको बनाया जाता है। कुछ तेल ऐसे हैं जो बाष्पीभवन से बनते हैं, निर्वापन से बनते हैं, जैसे कि भल्ला तक तेल है जिसको गर्म करके उसके बाष्पीभवन से बनाया जाता है, वो अलग तेल है, ठीक है। उसको भी आप शुद्धिकरण के लिए दूध में उसको उबाल सकते हैं, उसका भी दूध में, भल्ला तक तेल को दूध में डालकर उसका शतपाकी बनाकर उसके जो दाहता, तीव्रता जो होती है उसको हम कम कर सकते हैं। इंद्रलुप्त ऐसी जो बीमारियां होती है, जो यहाँ पे बालों में एलोपेशिया या इंद्रलुप्त जैसी बीमारियां होती है, उसमें भी भल्ला तक तेल का इस्तेमाल लगाने के लिए अच्छा इस्तेमाल होता है। यही तेल दूध में अमावस्था में, उरस्तंभ में, अमावस्था में, उरस्तंभ में, अवरोध में, यही तेल एक एक बूंद की मात्रा में दूध के साथ में हम दे सकते हैं। इसी तेल की हम परपटी भी बना सकते हैं, जिसे भल्ला तक परपटी कहते हैं। इसी तेल की देखो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया स्नेह विधि से हम बना सकते हैं। भल्ला तक परपटी, ये रस परपटी जैसे ही केले के पत्तों में बनाया जाता है, ठीक है। परपटी कल्प जो होता है वो केले के पत्तलों में ऐसा वो गर्म करके उसमें डाल के वो बनाया जाता है, उसकी एक पपड़ी बनती है। इसी पपड़ी को गुंजा की मात्रा में अगर पेशेंट को दिया जाए तो आम पाचन के लिए बहुत ही उत्कृष्ट काम करता है। ऐसा गुरु और उष्ण द्रव्यों का स्निग्ध की गुणधर्म है। शीत भी है, ठंडा भी है, उसके गुणधर्म में शीतलता भी देखी जाती है। द्रव्यों में उष्णता देखी जाती है। भल्ला तक उष्ण है, जैसे कि बला तेल है, शतावरी तेल है, जैसे हम तेल जो बनाते हैं, उस तेल के उस द्रव्यों के गुणधर्म के हिसाब से उस तेल का गुणधर्म चेंज होता है। लेकिन खुद जो स्निग्धता है, खुद जो स्निग्ध तेल है या घी है, ये शीत गुणात्मक रहते हैं।
मृदु रहता है, स्निग्ध रहता है। सरता माने क्या होती है? सरता, जैसे मराठी में कहते हैं कि भाई थोड़ा सरक, बाजू में मुझे बैठने दे। सरक, सरक माने सर मतलब बाजू होना, मतलब वो फैलना, सरत्व उसमें रहता है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। ये गुणधर्म उसमें ज्यादा करके दिखाई देते हैं, सूक्ष्म रहता है। इसलिए तेल को मतलब आप चूर्ण लो, आप वटी लो, आप कषाय लो, ठीक है, लेकिन जो गुणधर्म तेल आपको दिखाएगा, जैसे उदाहरण में बोलता हूं, वातज काच का पेशेंट है, वातज कास का पेशेंट है, ठीक है, इस वातज कास के पेशेंट को आपने दशमूल भरट का कषाय बना के उबाल कर छान कर पीने को दिया, ठीक है, कास थोड़ा कम हो गया, लेकिन पूरी तरह नहीं गया। इसी वातज कास के पेशेंट को आपने उसी दशमूल के कषाय में तिल का तेल 1 चम्मच डाल के अगर पीने को दिया, पेशेंट का वातज कास तुरंत बंद हो जाता है, क्योंकि वहां स्निग्धता, ये रुक्षता कम हो गई। दशमूल उसकी कैविटी को कम करता है, वातज की वात के जगह को कम करता है, लेकिन उस वात के कारण जो उत्पन्न हुआ जो रुक्षता है वो कम करने के लिए हमें स्निग्ध द्रव्यों का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये गुणधर्म आपको स्नेह के मालूम होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। शीत का मतलब शीत गुण जो होता है कि उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पूरा ठंडा हो। शीत माने वो स्तंभन करेगा, आह्लादन करेगा, दाह का प्रशमन करेगा, स्वेद का हरण करेगा, मूर्छा का हरण करेगा। ये सारे गुणधर्म शीत में दिखते हैं। ये गुणधर्म स्निग्ध गुण में, स्नेहन में, तैल में, घी में, मज्जा में, वसा में दिखाई देते हैं। ये आपको समझना चाहिए। इसलिए कितनी मात्रा में देना है ये भी आपको समझना चाहिए। देना है तो क्या कंटिन्यू देते रहेंगे? नहीं, दवा है वो। दवा सही समय पे, सही वक्त पर और सही मात्रा में अगर दे तो वो अच्छी काम करती है। वही अगर ज्यादा मात्रा में दिया गया तो वो उसका नेगेटिव फर्क भी हमें दिखाई देता है। नेगेटिव फर्क से याद आया कि दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा से भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से भी साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए मैंने एक मैंने कंसर्न फॉर्म आपके साथ मैंने शेयर किया था। एक कंसर्न फॉर्म मैंने आपके साथ में मैंने शेयर किया था। दोस्तों, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये कंसर्न फॉर्म बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, कॉन्टैक्ट, पर्पज़ क्या है लेने का, आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग रस औषधि, वो क्या काम करती है, बेनिफिट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है किसी पेशेंट को, एलर्जिक रिएक्शन होती है किसी पेशेंट को, रस सिंदूर की, मल्ल सिंदूर की, अलग अलग रसकल्पों की पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किसी को नौशिया होता है, किसी को पेन इन एब्डोमेन होता है, किसी को डायरिया भी हो सकता है, किसी को मेटालिक टॉक्सिसिटी रह सकती है, किसी को एग्रीवेशंस होता है, किसी को हेपेटोरिनल इनकॉम्पिडेंस रहता है बिकॉज ऑफ हर्बो मिनरल्स फॉर्मुलेशन की वजह से। ठीक है, आप बहुत सारे वैद्यों के पास काम करते होंगे, देखे होंगे, बहुत सारे वैद्य अमूप मात्रा में रसौषधि का यूज करते रहते हैं। वो उनके अनुभव सिद्धि से वो यूज करते हैं। लेकिन अगर आप नए प्रैक्टिशनर है तो आप थोड़ा संभल के प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो सारे भी जितने भी ड्रग्स है आपके पास, फिर वो वटी गुटी हो या तैल हो या चूरन हो, कोई भी कंटेनर के द्रव्य अगर आप यूज कर रहे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक कंपनी से बनाया हुआ ड्रग ही यूज करें, या आप खुद बनाएं। और खुद जब बनाएंगे आप, तब आपने कितनी क्वांटिटी में वो बनाया, उसका बैच नंबर क्या था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का कंटेंट क्या था, प्रोसीजर क्या था, और फिर अगर आपने वो बनाया है तो फिर वो आप FDA में या जो GMP सर्टिफाइड करके, गुड मेडिसिनल प्रैक्टिस GMP सर्टिफाइड
करके फिर आप उसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आप अगर कहेंगे कि मैंने खुद बनाया है और फिर मैंने खुद बनाया है, लेकिन उसका ऑथेंटिसिटी आपको चेक करवा के लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चेक नहीं करवाते तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो वो गुड मेडिसिनल प्रैक्टिस में आना चाहिए, उसके ऊपर, उस ड्रग के ऊपर, अगर वो मिनरल ड्रग है, हर्बो मिनरल ड्रग है, हर्बो मिनरल माने उसमें अगर रसौषधि है, यानी कि आरोग्यवर्धिनी वटी अगर आपने बनाई, शुद्ध शेखर वटी अगर आपने बनाई है, जिसमें मर्क्यूरी आपने अगर लिया है, तो वो मटेरियल अगर आपने लिया है तो उस हर एक क्लिनिकल ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल होना, उस आरोग्यवर्धिनी वटी को आपने कितने लोगों पे दिया, उसको कितने साइड इफेक्ट्स हुआ नहीं हुआ, उसका रिसर्च आपने किया क्या, ये सब अगर आप कर सकते हैं तो आप वटी गुटी बनाने का सोचो। नहीं तो जो कंपनियां, आयुर्वेदिक ऑथेंटिक कंपनियां जो है, जो ये जीएमपी सर्टिफाइड देते हैं, जिनके बिल के ऊपर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, ये सारी चीजें रहती हैं, और वो कंपनी आपको उस ड्रग का ड्रग ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट अगर आपको देती है तो ही आप उसका ड्रग इस्तेमाल करो, नहीं तो मत करो। बहुत सारे वैद्य ऐसे होते हैं, या बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां जो होती है, वो जो खुद बनाते हैं, लेकिन जिनके पास ये मैन्युफैक्चरिंग जीएमपी सर्टिफिकेट नहीं रहता है, या एफडीए का ड्रग का लाइसेंस नहीं होता है, आप कृपया करके ऐसे लोगों से दवाई ना लें। जो आपको ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट दे सकता है, रिसर्च का, जिनके पास बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और जो इसकी गारंटी लेते हैं, उनसे ही ये ड्रग बनाया करो। अब रही बात चूरन की, तो चूरन में हर्बल जो चूरन होते हैं, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी आपको 6 महीने का, 4 महीने का मालूम रहता है, वो आप ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों के अगर, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को इसके ऊपर अगर तकलीफ होती है, और अगर आपके पास वो ड्रग का कोई ये नहीं है, कुछ मालूमात नहीं है, तो प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे बातें पेशेंट को बताना ज़रूरी है कि आयुर्वेदिक दवाई लेने से भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है। वमन है, विरेचन है, बस्ती है, उसके बेनिफिट्स भी है, पंचकर्म के बेनिफिट्स भी है, पंचकर्म के डिसएडवांटेज भी है। अगर आपने सही तरीके से उसका डाइट फॉलो नहीं किया तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखाई देंगे। आपको हेडेक होगा, स्किन इरिटेशन होगा, रेक्टल इरिटेशन होगा, सेप्टिक प्रिकॉशन अगर आपने सही तरीके से नहीं लिया गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लोग पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि सर हम घर में बस्ती ले क्या, सर हम घर में ये कर सकते हैं क्या, तो सीधा ना कह दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन, अगर पेशेंट ने गलत तरीके से बस्ती देते समय में अगर एयर पुश कर दिया तो गुल्म उत्पन्न होता है, उसमें पेट का दर्द होता है, ऐसी बहुत सारी बातें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद पेशेंट का और रिलेटिव का सिग्नेचर लेना उतना ही ज़रूरी होता है दोस्तों। हाँ, और उसके बाद पेशेंट का हर एक चीज़ का आप कंसर्न लेना मत भूलिए, हर एक चीज़ का। जैसे कि हर एक चीज़ माने, जैसे कि पंचकर्म ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल का एक चार्ट है। ठीक है, मैंने पंचकर्म का प्रोसीजर किया, उसका डेट लिखा, उसको मैंने बस्ती दिया, क्या मैंने उसका मेडिसिन मैंने उसको क्या दिया, उसका मैंने ब्लड प्रेशर भी चेक किया बिफोर, पल्स भी चेक किया बिफोर, नाड़ी परीक्षण भी चेक किया बिफोर, आफ्टर भी किया, और पेशेंट को सब होने के बाद मैंने उसका साइन लिया। डेली बेसिस पे हर एक प्रोसीजर में, अगर वो आप स्नेहन भी करते हैं तो कौन सा स्नेह यूज किया, कौन से कंपनी का स्नेह आपने यूज किया जो आपके पास ऑलरेडी है, उस कंपनी का नाम भी डालो यहाँ पे, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो, जस्ट एक एसकेएम कंपनी का, धनवंतरी का, या किसी का भी आपने अगर यूज किया है उसका नाम डाल दो। डेट आपने यहाँ पे लिख दिया, मेडिसिन कौन सा यूज किया, कंपनी का नाम लिखा, ब्लड प्रेशर पहले बिफोर आपने लिखा, आफ्टर का लिखा, और उस पेशेंट का जाने के टाइम में साइन ले लिया। ये डेली बेसिस पे अगर आप क्लिनिक भी अगर आप चलाते हैं, छोटा सा क्लिनिक भी है, तो भी आपको इसे सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना उतना ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा,
स्नेहन के तो वीडियो मैंने बताए थे। ये एक स्नेहन का वीडियो हम देखेंगे जो मैंने सुबह भी शेयर किया था। नमस्कार। अभी ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट को हम बस्ती देने जा रहे हैं। इस पेशेंट के लंबार की तरह यहाँ पे L2 से लेके L3, L4, L5 इसमें कॉम्प्रेशन है, बल्जिंग है, ठीक है। और इस जगह पे अगर जब बल्जिंग की कंडीशन होती है या कॉम्प्रेशन जब होता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। दोस्तों, सर्वाइकल का पेन हो, लंबार का पेन हो या नी का पेन हो, जहां जहां पे वात की दृष्टि रहेगी वहां वहां पे तापमान, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा। यह हमेशा ध्यान में रखो। वायु के गुण के ध्यान में रखो। वायु जो है वो रुक्षता से काम करता है और एकांगिक वायु कभी भी नहीं रहता। वायु जब किसी के एरिया में, टेरिटरी में प्रवेश कर रहा है तो उस टेरिटरी में जो कफ है, जो वायु है, जो पित्त है, वो उसको भी अपने साथ में लेके जाएगा। लंबार एरिया ये वायु का ही प्रदेश है, ये अस्थि धातु का प्रवेश है, ठीक है। अस्थि का प्रवेश है, मज्जा का प्रवेश है। मज्जा हा पित्त दोष का आश्रयाश्रय संबंध है, पित्त दोष का मज्जा धातु से दोस्तों। तो यहाँ पे वायु पित्त को प्रकोपित कर देता है, वायु पित्त को प्रकोपित करता है, पित्त मज्जा को दूषित कर देता है, मज्जा बल्ज हो जाती है, मज्जा का जो गादी है, जो उसका इंटरवर्टिबल डिस्क है, उसमें बल्जिंग हो जाती है, जो बाहर आ जाती है। तो इसके कारण यहाँ पे तापमान में, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। गले का टेम्परेचर में वृद्धि होगी, घुटना हो या कहीं भी हो, ठीक है। साथ ही साथ डिफॉर्मिटी, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी भी आपको दिखाई देगी। इस पेशेंट को अगर मैंने खड़ा किया ना, एक कर्वेचर में चेंजेस दिखाई देता है। हाँ, इसके कर्वेचर में, लेफ्ट साइड के कर्वेचर में थोड़ा सा उसको डिफॉर्मिटी दिखाई देती है कि थोड़ा सा ये जो पेशेंट है इसका भी मैं आपको चाहूँ तो मैसेज मेरे पास देखो, मैं आपको ये वीडियो, ये मैसेज मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। ये वही पेशेंट है, सेम पेशेंट। दिख रहा है आपको? लेफ्ट साइड में थोड़ा सा इसका जो डेविएशन जो होता है लेफ्ट साइड में थोड़ा अत्यधिक मात्रा में है। दिख रहा है आपको? राइट, ठीक है। ओके, तो अभी हम देख रहे थे उसके वीडियोस के बारे में भी। ओके, स्नेहन 1, नमस्कार। अभी इस जगह पे अगर जब बल्जिंग की कंडीशन होती है या कॉम्प्रेशन जब होता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। तो इस पेशेंट को जब मसाज दिया जाता है तो नसें कॉम्प्रेस के कारण थोड़ा सा ब्लॉक में रहती है, अवरोध में रहती है। तो यहाँ का जो स्नेहन है वो थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दबाव दे के मसाज दिया जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ नसों को, वरून खालच्या दिशेला, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। सो फ्रॉम
डाउन टू अपवर्ड, ये मसाज जो होगी ये डाउन टू अपवर्ड होगी और ऊपर से नीचे थोड़ा प्रेशर देके मसाज किया जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर तो हम तेल तो लगाते ही है, लेकिन नीचे से ऊपर से नीचे, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड बाय compressing the muscles there should be a अच्छा, वीडियो इज नॉट विजिबल, वीडियो दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, शाबाश, ठीक है। नो सर। इस प्रकार से ये मसाज इसमें होता है। यही प्रकार जो है तेल सर अभी भी नहीं दिख। अच्छा, यही प्रकार जो है आपके मैंने ये यहाँ पे भी होगा। तो स्नेहन के अलग अलग प्रकारों में बस्ती जब किसी को देना होता है उसमें मसाज कैसा होता है, ये थोड़ा सा दबाव दे के मर्दन करके हल्का सा, और बस्ती देने से पहले सिर्फ यहाँ से नीचे ही मसाज होती है, यहाँ से नीचे। लेकिन हम पूरी शरीर पे मसाज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा 1 मिनट। वीडियो दिखाई नहीं दिया था ना? अच्छा, ये दिख रहा है? यस सर। विधि करने से पहले स्नेहन अलग अलग रुग्णों में अभी अलग पहले वाले जो पेशेंट था वो वात व्याधि का पेशेंट था, उसमें हमने नीचे से फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड ऑयल एप्लीकेशन एंड फॉर मसल्स को दबा के नीचे तक आना, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, फ्रॉम प्रेसिंग द मसल्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मसल पोजिशंस ऑल्सो। ओके, मसल्स कहाँ कहाँ पे है उस हिसाब से आपको, और अंगुष्ठ को ज़्यादा महत्व देके, अंगुष्ठ को प्रेशर देके नीचे की तरफ आना है। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जहां आ रहे हैं, इस पेशेंट को, पहले वाले पेशेंट को हमें बस्ती देना था, तो बस्ती में मोस्टली क्या होता है, हम नाभि के नीचे ही मसाज देते हैं, पेट के ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहता है। ठीक है, तो उसके पहले हम सर जो आप कह रहे हैं कि अपवर्ड से डाउनवर्ड आने हैं मसाज में, हाँ, तो फिर जब हम डाउनवर्ड से अपवर्ड कोष्ठ की तरफ जाते हैं वो कब वो करना हम होता है? स्नेहन में, समझो किसी को मैंने वमन दिया है, वमन दे रहा हूँ, विरेचन दे रहा हूँ, उस या कंडीशन में, उस कंडीशन, ठीक है। उस कंडीशन में, जैसे अभी ये वाला जो पेशेंट है, दिस प्रकार का स्नेह वन, इस होता पेशेंट को मेरे को विरेचन देना है, ये डीबीटी का पेशेंट है। है। इस पेशेंट का विरेचन कर्म हम करने वाले हैं। तो विरेचन से प्रायः हमने उनको घृतपान दिया है। तो विरेचन में जो हम घृतपान देते हैं उसमें जो मसाज होती है, स्नेहन जो होता है, देखो वो किस प्रकार से कर रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो स्नेहन की जो होती है मसाज की, वो कोष्ठ के शाखा से कोष्ठ की तरफ होता है। ठीक है, शाखा से कोष्ठ की तरफ, और हर एक संधि को गोलाकार पद्धति से गोलाकार पद्धति से। अभी इसमें जो हम तेल यूज किया जाता है, तो अलग अलग प्रकार के तेल होते हैं। उसमें दशमूल तेल है, बला तेल है, ठीक है, बला अश्वगंधा तेल है, या जो वातहर का जो स्नेहन का जो तेल है वो यूज होता है। अभी इन पेशेंट में विरेचन करने का एक और कारण यह है कि इनको लेफ्ट साइड के जो लेग अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो वहां पे वेरिकोज की उनको प्रॉब्लम है, और डीवीटी का भी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का भी ये पेशेंट है। तो इसलिए रक्त की दृष्टि होने के कारण 1-1.5 महीना इनका दवाई चला है। तो पहले से बहुत बेहतर दवाई से दीपन पाचन होने के कारण इसकी स्वेलिंग बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या होता है कि इसमें जब कोई व्याधि जीर्ण हो जाता है, तो उसमें दवाई बंद करने के बाद वो व्याधि पुनश्च उत्पन्न होती है। तो उसमें विरेचन पंचकर्म ओके,
यस सर। गोल गोल पद्धति। ये वीडियोस मैंने ग्रुप पे डाले हुए हैं, आप ग्रुप पे वो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को वमन देना है, विरेचन देना है, तो उसके पहले जो स्नेहन होगा वो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, फ्रॉम शाखा टू कोष्ठ। कोष्ठ माने एब्डामन, पेट, पक्वाशय। ठीक है, ये यहां पे आएगा, पूरा कोष्ठ तक उसको हमें लेके आना है। और जब हम बस्ती दे रहे हैं या नॉर्मल मसाज जो हम कर रहे हैं, अगर हम बस्ती दे रहे हैं तो बस्ती में अगर कोई पेशेंट का वात व्याधि का पेशेंट है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है पेशेंट है, तो उसकी नसें जो है वो हमें खुली करनी है। तो शुरुआत होता है पेट से। बस्ती में मसाज होगी, शुरुआत में पेट के ऊपर गोलाकार गति से अच्छी तरह से मसाज होगी। ज्यादा से ज्यादा तेल का पूरन नाभि के पास होगा। ज्यादा से ज्यादा तेल का पूरन जो होता है वो नाभि के पास होगा। नाभि के पास तेल का पूरन हो जाने के बाद फिर उसको हल्के हाथों से, और वो जब आप नाड़ी भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नाड़ी अगर अवरोध की नाड़ी अगर रहेगी, अवरोध की अवस्था रहेगी, तो ये उछाल मारता है। नाभि जो है वो उछाल मारती है, पल्सेटिंग रहती है। ठीक है, और यही अवस्था अवरोध की ग्रहणी में भी देखा जाता है, पांडुता में भी देखा जाता है, अवरोध पांडुता की अवस्था में भी देखा जाता है, कफज ग्रहणी में भी देखा जाता है, कफज पांडु में, कफज गुल्म में, कफज उन्माद में भी कफज उन्माद में भी नाभि में ये पल्सेशन दिखाई देता है। तो स्नेहन करते समय में नाभि के ऊपर स्नेहन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कोई भी वात व्याधि हो, मस्तिष्क का हो, उन्माद हो, अपस्मार हो, श्वास हो, कास हो, ग्रहणी हो, वातज अतिसार भी हो, वातज ग्रहणी हो, वातज गुल्म हो, वातज अतिसार हो, श्वास हो, कास हो। श्वास कास में हमें लगता है कि हम ट्रीट कर रहे हैं फेफड़ों को हम ट्रीट कर रहे हैं नाभि को, हम ट्रीट कर रहे हैं अग्नि को, क्योंकि अग्नि ही मंद होता है जिससे वायु की उत्पत्ति होती है। वायु उदावर्त हो जाता है, वो उदावर्त वायु फेफड़ों में जाके और सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न करता है। तो नाभि के ऊपर स्नेहन होना हर दिन इस पेशेंट को, ये शरद हेमंत ऋतु में तो बहुत अच्छा काम करता है। उनके गुणधर्मों को समझ के करना। मैं तो कहता हूं हर दिन अगर नाभि के ऊपर हल्का सा तेल लगाया जाए, अगर और तालु के ऊपर अगर हल्का सा तेल लगाया जाता है हर दिन कोई भी वात व्याधि के पेशेंट को, मुझे तो ऐसा लगता है कि जगत में 70 to 80% लोग वात व्याधि के ही है या वात प्रकृति के हैं। पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, जहां जहां पे आपको सूरज की उष्णता दिखाई देगी वहां वहां पे आपको वात प्रकृति के लोग दिखाई देंगे। जहां सूरज की उष्णता कम रहेगी, तिरछी रहेगी, वहां कफ प्रकृति के लोग ज्यादा दिखाई देंगे। तो स्नेहन करना उतना ही इंपॉर्टेंट इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो स्नेह में दो प्रकार के, तो स्थावर स्नेह होता है और एक जंगम स्नेह होता है। वनस्पति द्वारा बनाया हुआ जो स्नेह होता है, जैसे कि तिल का तेल है, चित्रक का है, मधुक का है, कुसुम्ब का है, अतसी का है, हाँ, इस प्रकार के जो तेल होते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैंने पीपीटी मैंने बनाई थी। नेटवर्क का इश्यू है थोड़ा।
ओके 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 ये दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, चलो। तो इसमें पंचकर्म में पूर्व कर्म में हम बात कर रहे हैं, पूर्व कर्म के में हम स्नेहन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पाचन हर एक दवाई का, हर एक बीमारी का, दीपन, पाचन, अनुलोमन, इस प्रकार की जो विधियां होती है, कोई भी पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आता है दोस्तों, अत्ययिक अवस्था अगर छोड़ दो, अत्ययिक अवस्था जो है ना वो छोड़ दो, तुरंत उसको पंचकर्म के ऊपर लेने के लिए कोशिश ना करें। तुरंत वमन देने का, तुरंत विरेचन देने का, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं कहूंगा कि तुरंत आप उसको पंचकर्म, वमन, विरेचन देने की कोशिश ना करें। शोधन चिकित्सा में हम दोषों को कोष्ठ में लाकर बाहर निकालते हैं। दोष बहुत दिनों से शाखा में स्थित रहते हैं, जकड़ के रहते हैं। शाखा से हमें उनको कोष्ठ में लाना है, तो शाखा से लाने के लिए पहले उनका दीपन होना, पाचन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कम से कम 15 दिन से लेके 1 महीना तक का पाचन होना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल जो मार्केट में जो चल रहा है आयुर्वेद के नाम पे कि पेशेंट 8 दिन के लिए आता है, 8 दिन में उसका वमन होता है, विरेचन होता है, बस्ती होता है, 8-15 दिन में उसका पूरा हो जाता है। ये शरीर की हानि होती है दोस्तों। जो चीज के लिए जितना समय देना जरूरी है उतना समय होना बहुत बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे स्नेहन का। स्नेहन में हमने स्थावर और जंगम ऐसे 2 प्रकार देखे। स्थावर माने वनस्पतियों से बनाया हुआ और जंगम माने प्राणियों से बनाया हुआ। हाँ, जैसे कि अभी मज्जा तेल है, जो हम आजा के मज्जा से बनाया हुआ मज्जा तेल है। उसके बाद मस्तिष्क तेल है, जो आजा के मस्तिष्क से बनाया हुआ होता है। उसके बाद मांस तेल है, आजा मांस तेल बनाया होता है। ठीक है, तो ऐसे प्राणियों के अवयवों से बनाया हुआ तेल होता है, जिन तेलों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र कहता है रस से रस की उत्पत्ति होती है, रक्त से रक्त की उत्पत्ति होती है, मांस से मांस की उत्पत्ति होती है, मेद से मेद की, अस्थि से अस्थि की, मज्जा से मज्जाशी। अगर सेरिब्रल एट्रोफी का पेशेंट है, अगर डिमेंशिया का पेशेंट है, उम्र ज्यादा हुई है, तो ऐसे पेशेंट को यापन बस्ती देना कितना लाभदायक होगा, बहुत। क्योंकि यापन बस्ती में मज्जा रस का, मांस रस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। वहां पे भी स्नेह की प्रचारना इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। हर जगह पे स्नेह का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि विरेचन में हमें विरेचन देना है पेशेंट को, तो विरेचन में हम वनस्पति द्रव्यों का स्नेह देते हैं। एरंडेल तेल देंगे, आरगवत देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के स्नेहों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे करंज का तेल है, जो हम त्वचा रोगों में, यही इंद्रलुप्त में, डैंड्रफ में, कुष्ठ में, श्वेत कुष्ठ में, ये करंज का तेल उतना ही महत्वपूर्ण काम करते हुए दिखाई देता है। जैसे कि कोई महाव्याधि है, महाव्याधि माने कुष्ठ का, महाकुष्ठ है, सोरासिस की एक उच्चतम अवस्था है, जहां पे स्केली स्किन है, वहां पे तुअरक का तेल है, नीम का तेल है, तुअरक, ऐसे तेलों का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। मूत्र संग है दोस्तों, मूत्र संगता यानी कि यूरिन में इनकंटिन्यूस आ रहा है, कि यूरिन में ब्लॉकेजेस आ रहा है, यूरिन रुक रहा है, रुक के आ रहा है। ऐसे में जो ककड़ी होती है ना, ककड़ी, खीरा बोलते हैं उसको, ये ककड़ी से, या क्या बोलते हैं, क्या उसका नाम है, कुष्मांड,
कुष्मांड, ठीक है, पेठा बोलते हैं उसको। तो इस कुष्मांड से बनाया हुआ तेल जो होता है वो गर्म पानी में सुबह और शाम को अगर दिया है वो मूत्रल काम करता है। हमें क्या याद है? गोखरू याद है, हमें पुनर्नवा याद है। लेकिन ये भी सारी वनस्पतियां हैं जिनके स्नेह का इस्तेमाल करने से वो मूत्रल काम करता है। पथरी निकल जाती है, छोटी मोटी पथरी जो होती है वो निकल जाती है। साथ में अगर ये केले के जो शार होते हैं, जिसे कदली शार बोलते हैं, हाँ, उससे भी अगर तेल बनाते हैं केले के इसमें से, उसका जो मूली होती है उससे अगर तेल बनाया जाए या कषाय बनाया जाए तो भी वो मूत्रल काम करता है। आपको मालूम है कभी कभी स्टोन इतना बड़ा होता है, 16 mm का, 12 mm का, 2 mm की नली होती है यूरेटर की, उसमें से वो निकलता नहीं तुरंत। तो यही इसके ऊपर ब्राह्मी घृत भी स्नेह है, गर्म है, ब्राह्मी उष्ण गुणात्मक है। ये ब्राह्मी घृत अवपीडक मात्रा में अगर सुबह शाम दिया जाए, खाना खाने से पहले 1 घंटा, खाना खाने के बाद 1 घंटा, अगर ऐसी अश्मरी के पेशेंट को ब्राह्मी घृत अगर दिया जाए। अब ब्राह्मी घृत कौन सा? मस्तिष्क के रोगों में बनाया हुआ ब्राह्मी घृत नहीं, उसके लिए आपको अर्श व्याधि पढ़ना पड़ेगा, अष्टांग हृदय का। उसमें जो ब्राह्मी घृत बताया गया है वो उसको ध्यान में रख के आपको वो ब्राह्मी घृत बनाना पड़ेगा, जिसमें ब्राह्मी है, वचा है, पुनर्नवा है, शार है, शिलाजीत है, यवक शार है, त्रिकटु है, पंचकोल है, दशमूल है, तृणपंचमूल है। इससे बनाया हुआ ये ब्राह्मी घृत सुबह शाम अगर पेशेंट को दिया जाएगा तो वो अवपीडक की मात्रा में बड़े बड़े अश्मरियों को निकालने के लिए भी अच्छा काम करता है। अभी ये प्रमेह वाला जो पेशेंट होता है दोस्तों, प्रमेह वाला, हाँ, आज के जमाने में सबसे बड़ा व्याधि जो है ना, सबसे बड़ा, मैं तो कहता हूं कैंसर से भी बड़ा कोई व्याधि अगर है वो है प्रमेह। आप समझ रहे? कैंसर से भी बड़ा अगर कोई व्याधि है तो वो क्या है? वो है प्रमेह। हम क्या करते हैं? हम आयुर्वेद वाले क्या करते हैं? आयुर्वेद में कफज, पित्तज, वातज ऐसे प्रमेह के प्रकार दिए हैं। क्या हम आयुर्वेद की निदान पद्धति से प्रमेह का डायग्नोसिस करते हैं क्या? आयुर्वेद की निदान पद्धति में क्या कहा गया है प्रमेह के बारे में कि भाई कैसे निदान करना है, किस प्रकार निदान करना है? कोई मुझे बताएगा आयुर्वेद की निदान पद्धति में कि इस पेशेंट को प्रमेह है, ये आपकी, इस पेशेंट को कफज प्रमेह है, इस पेशेंट को पित्तज प्रमेह है, इस पेशेंट को वातज प्रमेह, ये आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे? मूत्र परीक्षण से। क्या हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में मूत्र परीक्षण करते हैं क्या? हाँ, क्या हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में मूत्र परीक्षण करते हैं क्या कि हमें भाई आपका मूत्र मुझे एक टेस्ट ट्यूब में दे दो, 1 दिन तक आप वो मूत्र को ऐसे ही प्रकार से धूप में रखो, उसका मूत्र, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, 24 घंटे के बाद उस मूत्र का कलर चेंज होता है, धूप में रखना है। तब आपको समझ में आएगा कि चरक साहब ने क्या लिखा है। चरक ने जो सांद्र में है, जो पीत में है, मंजिष्ठा में है, शुक्ल में है, ये जो प्रमेह के जो प्रकार उन्होंने जो बताए हैं वो तब आपको पता चलेंगे। तो सांद्र में कफज के 10 जो प्रकार है, पित्तज के 6, वातज के 4, इन सभी के ऊपर कम से कम 48 के ऊपर कल्प आचार्य चरक जी ने बताए हैं, 48 के ऊपर कल्प बताए हैं। क्या हम उससे इस्तेमाल करते हैं? हम देखते हैं उसका शुगर लेवल, ब्लड शुगर 200 है तो ज्यादा है, ब्लड शुगर 500 है, तो क्या हम उसको क्लिनिकल कोरिलेशन करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये 400-500 है माने वातज प्रमेय है, ये 250 से 300 है ये पित्तज प्रमेय है, ये 150 से 200 है तो ये कफज प्रमेय है? ऐसा क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है? नहीं होता। कफज प्रमेय तो पित्तज प्रमेय में भी कफ रहेगा, वातज प्रमेय में भी कफ रहेगा, कफ तो एवरीवेयर रहेगा, लेकिन वो दूषित मात्रा में रहेगा। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई व्याधि की चिकित्सा करते हैं उस व्याधि की चिकित्सा 2 ही मात्रा में होगी, एक तो वो अवरोध रहेगा, नहीं तो वो क्षय रहेगा। एक
अवरोध रहेगा तो उसकी प्लीहा बाधित होगी, और क्षय रहेगा तो उसका यकृत बाधित होगा। ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूं। अवरोध रहेगा तो उसकी प्लीहा बाधित रहेगी, और क्षय रहेगा तो उसका यकृत बाधित रहेगा। इसको मैं और समझाने के लिए आपको एक ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये तो जाना पहचाना आवाज है, निधि का आवाज है ना ये? यस तू जी सर। का यस सर। तो मेरा कहने का यह मतलब है, अगर अवरोध रहेगा तो प्लीहा में बाधा रहेगी, और क्षय रहेगा तो यकृत में बाधा रहेगी। देखो मैं आपको निदान है ना इतना आसान करके बता रहा हूं। कोई भी व्याधि रहने दो, कोई भी व्याधि रहने दो, उस व्याधि को अगर आपको ट्रीट करना है तो आप दो पद्धति से करेंगे। एक तो है हेतु प्रत्ययनिक और एक है रोग प्रत्ययनिक। हेतु प्रत्ययनिक, जिस हेतु के कारण वो व्याधि उत्पन्न हुआ है उसको आप ट्रीट कर रहे हो। रोग प्रत्ययनिक, उस व्याधि का, उस हेतु से उत्पन्न होने वाला जो रोग है उस रोग को आप ट्रीट करोगे। यानी कि दोष प्रत्ययनिक कहो कि क्या क्या दोषों में बाधा आई है। समझो हम लेते हैं ज्वर, ठीक है, कफज ज्वर, ठीक है। तो कफज ज्वर में पेशेंट को ठंडी लगी है, ठंडी बच के बुखार आ रहा है, स्वेलिंग है, वोमिटिंग जैसा लग रहा है, ये सारे लक्षण उसको दिखाई देते हैं, ठीक है। उसमें उस पेशेंट को प्लीहा में बाधा होती है। दोष प्रत्ययनिक कफ की बाधा है। आप कफज ज्वर का किताब निकालोगे, किताब में कफज ज्वर का क्या फॉर्मुलेशन है, उसमें वरुणादि कषायम है, पुनर्नवादि कषायम है, और बहुत सारे किरा तिक्तादि कषायम है। ये सारे कषायम आप इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, बराबर। वो कषाय आप पेशेंट को देते हो, उसकी ठंड कम हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। उसके कषाय बंद हो गया, कषाय से सिर्फ उसके दोषों का पाचन होता है, रोगोत्पत्ति का पाचन नहीं होता, रोग का पाचन नहीं होता, धातु का पाचन नहीं होता, दोषों का पाचन होता है, ठीक है। तो उसके दोषों का पाचन हो जाने के बावजूद भी संप्राप्ति भंग नहीं होती। उस संप्राप्ति को भंग करने के लिए आपको अवरोध की अवस्था में प्लीहा को ट्रीट करना है। क्यों? कोई भी अवरोध रहने दो, कफज उन्माद हो, कफज अपस्मार हो, कफज श्वास हो, कफज राजेष्मा हो, कफज प्लीहा हो, कफज ग्रहणी हो, गुल्म हो, अतिसार हो, वात व्याधि हो, कुष्ठ हो, त्वचा रोग हो, कोई भी कफज का व्याधि होने दो, प्लीहा में बाधा होती है। जब तक प्लीहा ट्रीट नहीं होगी वो व्याधि ट्रीट नहीं होगा। प्लीहा किस किस धातु से बनती है? रस से बनती है, रक्त से बनती है, मांस धातु से बनती है। रक्त निर्मित के लिए प्लीहा बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। मैंने क्या बोला? आयुर्वेद के दृष्टिकोण से दोस्तों रक्त निर्मित यकृत और प्लीहा से होती है। मॉडर्न वाले बोलते हैं कि रक्त निर्मित के लिए बोन मैरो इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में रक्त निर्मित होती है। तो क्या सही है क्या गलत है? प्लीहा रक्त निर्मित के लिए काम नहीं करता? जवाब दो। प्लीहा रक्त निर्मित के लिए काम नहीं करता क्या? यकृत रक्त निर्मित के लिए काम नहीं करता है क्या? जिन्होंने मेरा लेक्चर पहला सुना है वो जवाब ना दे रहे। आप मुझे मैसेज करो, चैट बॉक्स में डालो।
बात करेंगे तो हम डिस्कस करें, तो मैं अकेला ही बात करता रहूंगा। मैं कहता हूं देखो, मॉडर्न के हिसाब से रक्त निर्मित के लिए बोन मैरो जरूरी है। रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिनको रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, जिसे आरई सिस्टम कहती है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। तो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ बोन मैरो इंपॉर्टेंट नहीं है, बोन मैरो के साथ में फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, B12, जिंक, ये सारी चीजें इनकी बहुत जरूरी होती है। ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कहां पे होती है? लीवर में, एक्सेप्ट B12 एब्जॉर्ब होता है स्टमक में। बाकी की ये सारी चीजें जो है ये स्टमक में से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होके लीवर में जाती है। लीवर में कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स के साथ में लीवर में कुछ इंजाइम्स हैं, एसिटिल कोलिन जैसे, ये इंजाइम्स उसके ऊपर काम करते हैं, उस ट्रांसपोर्टर के साथ में उसको बोन मैरो के पास भेज देते हैं। और आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है, उस आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के लिए प्लीहा इंपॉर्टेंट है। 120 दिन के बाद आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है, डब्ल्यूबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है, ये डिस्ट्रक्शन प्लीहा में होता है। तो जहां पे इनको लेके जाने का काम लीवर करता है बोन मैरो में, और जहां पे उनका काम हो जाने के बाद 120 दिन के बाद आरबीसी का मैचुरेशन के बाद उसको डिस्ट्रक्शन करने का, उसमें से हीमोग्लोबिन निकालने का, वो काम भी प्लीहा का है। फिर उस हीमोग्लोबिन को डिग्रेडेशन करना, उस हीमोग्लोबिन को फिर से लीवर के चैनल में लेके आना, फिर उस फिर मतलब हीमोग्लोबिन, हीम आयन, ग्लोबिन प्रोटीन, उस प्रोटीन को फिर से लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा से यूज करना, ये साइकिल, ये पूरी साइकिल के लिए लीवर इंपॉर्टेंट है, प्लीहा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट लीवर एंड विदाउट प्लीहा अ ब्लड कैनॉट बी फॉर्म, अ रस धातु कैनॉट बी फॉर्म। अगर ये फॉर्म नहीं हुआ तो आयुर्वेद में कहा है कि रस के बाद रक्त की, रक्त के बाद मांस की, मांस के बाद मेद की निर्मित होती है पोष्य भाग से, पोषक भाव से। तो ये कैसे बनेगी जब अगर लीवर और स्प्लीन अगर ठीक तरीके से काम नहीं करेगा? तो एनाटॉमिकली मॉडर्न एंड आयुर्वेद सेज लीवर एंड यकृत इज सेम, बट फिजियोलॉजिकली आयुर्वेद के माध्यम से यकृत अलग काम करता है और फिजियोलॉजिकली मॉडर्न के माध्यम से लीवर अलग काम करता है। अलग रास्ते से जाते हैं लेकिन आते हैं एक ही एंड प्रोडक्ट के पास, रक्त निर्मित के पास, रस निर्मित के पास। प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, इनका डिग्रेडेशन करना, इनको फॉर्मेशन करना, इन सब का फॉर्मेशन का काम, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम, फैट मेटाबॉलिज्म का काम, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का काम, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम, सारा लीवर में ही होता है। तो स्नेहन में हम बात कर रहे थे कि कोई भी व्याधि को अगर आपको ट्रीट करना है तो आपको प्लीहा को ट्रीट करना पड़ेगा। दोष प्रत्ययनिक चिकित्सा और प्लीहा की चिकित्सा, दोष प्रत्ययनिक चिकित्सा और यकृत की चिकित्सा, तो ही आप उसको आगे जाके ट्रीट कर पाओगे। जैसे कि हमने कफत ज्वर के बारे में बात किया था, तो कफत ज्वर में रस रक्त मांस पाचक कषाय आपको देना पड़ेगा। एक साइड में रस रक्त मांस पाचक जो प्लीहा को पाचन करेगा उसका दवाई आपको देना है, और एक साथ में उसी में अगर आप दोष प्रत्ययनिक दवा भी ऐड करके देते हो कफज की, तो एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा। यही फॉर्मुलेशन भेषज रत्नावली में कफत ज्वर के कषाय में लिखा हुआ है। दोष प्रत्ययनिक कफ को कम करने के लिए त्रिकटु चाहिए, पंचकोल चाहिए, बस हो गया। इस पंचकोल को, इस त्रिकटु को रस रक्त मांस पाचक काढ़ा में डाल दो, कफज ज्वर ठीक हो गया। कफज उन्माद है, कफज उन्माद है। रस रक्त मांस पाचक कषाय आपके पास है, पटोल इंद्र जो कुटकी, अनंता मुस्ता पाठा कुटकी, चंदन अमृता,
ये रस रक्त मांसपाचक कषाय आपको मालूम है, जो ये कषाय और उन्माद में कफज उन्माद के जो घटक द्रव्य है, क्या है कफज उन्माद में? वचा है, रिंगनी है, चित्रक है, त्रिकटु है, अनुलोमन के लिए अजवाइन है, वासा है, नीम है, हरितकी है। इन सारे द्रव्यों को इस रस रक्त मांसपाचक कषाय के साथ में जोड़ के सुबह शाम सही अनुपान के साथ में दे दो, कफज उन्माद ठीक हो जाता है। कफज ग्रहणी भी ऐसी ही है। रस रक्त मांसपाचक का कषाय लो, कफज ग्रहणी के ऊपर कौन से प्रभावात्मक द्रव्य काम करते हैं कफज ग्रहणी के ऊपर? हाँ, बिल्व है, अजवाइन है, मोच रस है, मुस्ता है, सेंधव है। हाँ, बिल्वादी जो चूर्ण है जो कफज ग्रहणी के ऊपर काम करते हैं त्रिकटु के साथ में, वो हमें रस रक्त मांस के साथ में देना है, तो ही वो व्याधि 7 दिन में ठीक हो जाएगा। ये मुझे आपको कहना था, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो, योनि भेद से हम बात कर रहे थे। स्थावर है, जंगम है, स्थावर में कवात तेल घृत है, जंगम में शीर घृत वसा मज्जा है। अभी आता है दोस्तों कार्मुक के भेद से। कार्मुकता के भेद से यानी कर्म के भेद से स्नेह का इस्तेमाल हम कर रहे हैं दोस्तों। स्नेह कैसे बनाना है समझ में आ गया। स्नेह के गुण क्या है ये मालूम आ गए। स्नेह कौन कौन से अवयवों के ऊपर मुख्यतः प्रभाव से काम करता है। अगर ज्यादा मात्रा में स्नेह लिया तो यकृत की बाधा होगी, ज्यादा मात्रा में स्नेह लिया पांडुता होगी, ज्यादा मात्रा में स्नेह का पान किया अतिसार होगा, ज्यादा मात्रा में स्नेह का पान किया पांडुता होगी, कामला होगा। इसलिए अभ्यंतर स्नेहपान वमन हो या विरेचन हो, या ऐसे भी अगर किसी पेशेंट को आप स्नेहपान करने के लिए कह रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि उसका अग्नि प्रज्वलित रहे। उसका अग्नि प्रज्वलित रहना बहुत जरूरी है। अगर उसका अग्नि प्रज्वलित नहीं है तो उसको स्नेहपान के गुणधर्म की ज्यादा उसको फायदा दिखाई नहीं देंगे। इसलिए हमेशा रुचिय सी मात्रा से, कम मात्रा से शुरू करो और स्लोली स्लोली बढ़ाओ। अत्यधिक शुरुआत में ही ज्यादा मात्रा से शुरुआत करने की, स्नेहपान देने की कोशिश ना करो। अभी कैसा है, वमन में 3 दिन 4 दिन स्नेहपान देते हैं, फिर उसके बाद 3 दिन स्वेदन देते हैं। किसी लोगों का ये तरीका है। कोई लोग 3 दिन स्नेहपान देते हैं, सुबह स्नेहपान देंगे, शाम को स्वेदन देंगे। 3 दिन 4 दिन का स्नेहपान रहेगा, उसके साथ में ही स्वेदन भी 5 दिन चलेगा। 1 दिन एक्स्ट्रा स्वेदन चलता है, शाम के टाइम में उसको स्वेदन दिया जाएगा। जैसे कि मैंने 1 तारीख को उसको स्नेहपान दिया, 4 तारीख को मैंने उसको स्नेहपान दिया। 40 ml, 80 ml, 100 ml, 120 ml हर शाम को मैंने उसको स्वेदन दिया। स्वेदन का चैप्टर हम नेक्स्ट पे पाठ पढ़ेंगे। 5वें दिन मैंने उसको स्नेहपान नहीं दिया, 5वें दिन भी मैंने उसको स्वेदन दिया, अच्छे तरह से स्वेदन दिया। 6वें दिन मैंने उसको वमन के लिए सुबह सुबह 7 बजे दिया। समझा? विरेचन में वैसा नहीं है। विरेचन में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है कि भाई मैंने पहला उसको 40 दिया, फिर 80 दिया, फिर 100 दिया, फिर 120 दिया। विरेचन में मैं और 2 दिन एक्स्ट्रा स्वेदन दूंगा क्योंकि मेरे को उसके शरीर में पित्त की वृद्धि होना बहुत जरूरी है। या कभी कभी 3-4 दिन ही पित्त की वृद्धि इतनी हो जाती है कि मैं 4थे दिन उसको, 5वें दिन में उसको स्वेदन देता ही नहीं, डायरेक्ट उसको 5वें दिन में उसको जुलाब दे देता हूं। कभी कभी मैं विरेचन के पहले गैप ही नहीं देता क्योंकि इतनी पित्त की वृद्धि हो जाती है। कभी कभी अगर वृद्धि नहीं हुई तो 1 दिन रुक के स्वेदन देख के 6वें दिन या 5वें दिन में जुलाब दे देता हूं। आज के जमाने में दोस्तों, पर पहले के जमाने में लास्ट मतलब ऐसे 6 दिन 7 दिन तक स्नेहपान चलता था। 40, 60, 80, 100, 120, 150 तक चलता था। लेकिन अभी 80 ml के बाद ही
स्नेह जीर्ण होना या स्नेह सिद्धि के लक्षण दिखाई देना पेशाब से, मोशन से, नाखूनों से, शरीर के ऊपर से, ये वो स्नेह का सिद्धि के लक्षण दिखाई दे देते हैं। तो हमें रुकना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है डॉक्टर भोर ने कहा है कि भाई 4 दिन स्नेहपान देना ही देना है, कम से कम 3 दिन, 40-80 या 40-60-80, कम से कम 3 दिन तो स्नेहपान होना बहुत जरूरी है। तो उस स्नेहपान का क्या फायदा। और स्नेहपान के पहले दीपन पाचन की दवाई कम से कम 15 दिन तो जानी चाहिए, तो ही आप उसको स्नेहपान के लिए लो। शोधन के लिए स्नेहपान करना अलग बात है, उसमें हम अत्यधिक मात्रा में स्नेहपान देते हैं, और शमन के लिए स्नेहपान करना अलग बात है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। शोधन क्या करते हैं हम। शोधन में घर को साफ करना है हमें। अगर घर को हमें साफ करना है तो हम क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में हम पानी घर में छोड़ देते हैं। क्या ऐसा ग्लास से पानी ऐसा नहीं करते, हम ज्यादा मात्रा में छोड़ते हैं। रूसी इसी मात्रा से शुरू करते हैं, अत्यधिक मात्रा तक लेके जाते हैं। तो अभी उस स्नेह सिद्धि के लक्षण क्या है ये समझना भी बहुत सारे वैद्यों को तकलीफ होती है। सर, शोधन और शमन स्नेह हम कैसे डिसाइड करेंगे किसको शोधन दे रहे हैं हम स्नेहपान, इसमें हाँ अभी देखो, शमन दे रहे हैं। किसी पेशेंट को बल नहीं है, हमें लगता है इस पेशेंट को बल कम है तो हम इसको वमन नहीं दे पाएंगे, विरेचन नहीं दे पाएंगे। तो हम ये सोचते हैं, जैसे क्षय का पेशेंट है, राजश्मा का पेशेंट है, श्वासकाश का पेशेंट है, आपका वो श्वास का पेशेंट है, उसको छाती में बहुत सारा कफ है, आपको लग रहा है कि इसको मैं वमन दूं तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि पेशेंट चंचल अवस्था में है, घबराहट की अवस्था में है, बहुत डरता है, छोटी छोटी बातों से टेंशन लेता है, स्ट्रेस में रहता है। इसको अगर मैंने वमन दिया तो ये और कंफ्यूज हो जाएगा, इसकी कंफ्यूजन की स्टेट ऑफ माइंड ज्यादा बढ़ेगी। ऐसी अवस्था में पेशेंट को काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काउंसलिंग करने के बाद भी आपको पता चलेगा कि पेशेंट अभी भी डरा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में उसको पता ना चले अचानक से ऐसी चीजें हो गई, इस प्रकार से उसका शोधन दो, नहीं तो उसको शमन दो। जैसे कि गर्भिणी है, गर्भिणी को श्वास है, कास है, गर्भिणी को मैं शोधन नहीं दे सकता, ना मैं उसको वमन दे सकता हूं, ना मैं उसको विरेचन दे सकता हूं, लेकिन मुझे उसको दवा देनी है। उसको क्षय की अवस्था है, उसके शरीर में रक्ताल्पता है, खून कम है, मैं उसको दाढ़ी मादी घृत दूंगा, जो मैं उसको प्राणकाल में दूंगा। प्राणकाल उसको मैं खाना खाने से पहले की अवस्था में उसको मैं ये मतलब आधा एक घंटा पहला 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में उसको पीने को बोलूंगा। किसी गर्भिणी को पेट साफ नहीं होता दोस्तों, किसी गर्भिणी को पेट साफ नहीं होता, तो मैं उसको द्राक्षादि घृत है या शतपुष्पा घृत है, घृत बोल रहा हूं मैं। इस शतपुष्पा यानी कि बड़ी शोप जो होता है मराठी में बोलते हैं, इस शतपुष्पा को मैं घृत बना के 1 चम्मच रात को गर्म पानी के साथ में उसको दूंगा, उसका पेट साफ होगा। आपके मन में आता है कि मैं उसको त्रिफला वटी दूं, सुक्कारक वटी दूं, जिससे उसके शरीर में रुक्षता और बढ़ती है, वायु का प्रकोप और होता है। मतलब 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता सुक्कारक वटी से उसका पेट साफ तो होगा, नेक्स्ट वीक में वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। वो बोलेगी सर 1 वटी से काम नहीं हो रहा है, 2 वटी लूं क्या? आप 2 वटी दोगे, फिर 1 हफ्ता 2 वटी से काम होगा, फिर तीसरे हफ्ते में वो 2 वटी भी काम नहीं करेगी। तो आपका निदान गलत हो रहा है, आपकी चिकित्सा का मार्ग गलत हो रहा है, ये आपको समझना जरूरी है। आप समझ रहे हैं? शमन कहाँ देना है और शोधन कहाँ देना है। शोधन, पेशेंट बहुत मजबूत है, पेशेंट त्रस्त हो चुका है, आप कुछ भी करो मेरे को ठीक करो, इस अवस्था में है। यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट ट्रीट मी, ऐसा बेक कर रहा है, और आपको फुल फ्लैश में वो आपके पास आया है, और ये रुग्ण का समर्पण है। रुग्ण के समर्पण के साथ में दोषों का समर्पण है क्या, यह आपको देखना है। माने दोष प्रकोपावस्था में है क्या, चयमेव जयत बराबर है,
लेकिन चय की अवस्था से वो प्रकोपावस्था में जा चुका है या प्रशम अवस्था में गया है, प्रसर अवस्था में गया, प्रसर। जैसे कि निमोनिया की अवस्था है, निमोनिया की प्राइमरी अवस्था है। उसके बाद कंसोलिडेशन की अवस्था है, कंसोलिडेशन, कफ जमा हो रहा है, उसके बाद वो फैल रहा है, प्रसर। तो कंसोलिडेशन की अवस्था हो या प्रसर अवस्था हो, प्रकोप अवस्था हो या प्रसर अवस्था हो, इस अवस्था में आप पेशेंट को वमन दे सकते हैं, विरेचन दे सकते हैं, बस्ती भी दे सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? शोधन ज्यादा मात्रा में होता है और शमन कम मात्रा में होता है। उसकी मात्रा जो होती है कम मात्रा में होती है। उदाहरणार्थ अभी अश्मरी का पेशेंट है तो मैं उसको, जैसे मैंने अभी कहा था कि अश्मरी के पेशेंट में हम उसको वरुणादि घृत है या शर्करादि कदली कंदादि घृत है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अलग प्रकार के स्नेह होते हैं, सिर्फ शोधन और शमन नहीं, ब्रूहन भी स्नेह होते हैं कि किसी पेशेंट को मुझे वजन बढ़ाना है, 40-42 35 की उम्र की 30 साल की 32 साल की कोई लड़की है और उसका वजन 40-45 किलो है, या कोई लड़का है। हाँ, तो ऐसी अवस्था में आपको यह समझना है कि यह क्षय अवस्था है क्या अवरोध अवस्था है। कफ की नाड़ी लग रही है क्या? कफ की नाड़ी है तो अवरोध है, पित्त की नाड़ी है, वायु की नाड़ी है तो क्षय है। नाड़ी देखना है आपको। अगर क्षय अवस्था है तो आपको यकृत को ध्यान में रख के, यकृत के लिए फलत्रिकादि कषाय देंगे, लघुमालिनी वसंत देंगे या आरोग्यवर्धिनी वटी देंगे, और साथ में उसको अनुपान के लिए आप उसको क्या देंगे? अनुपान के लिए क्या देंगे? अनुपान के लिए यही स्नेहपान हम साथ में देंगे। शतावरी घृत देंगे या छागल्यादि घृत देंगे या दाढ़ीमादि घृत देंगे, जो ब्रूहन काम करते हुए दिखाई देता है। अभी पाक भेद के साथ बात करने का जो है कि पाक भेद जय होता है कि भाई मृदु पाक है या मध्य पाक है या खर पाक है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि वो पाक किस प्रकार से बनता है। जब जैसे मैंने ये तेल जो बनाने के लिए मैंने रखा है, उस तेल में हाथ में ऐसे उसकी जो तार बनेगी, हल्की सी तार अगर जैसे बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो तार अगर बनेगी या उसका एक बूंद अगर मैंने अग्नि के ऊपर अगर रखा, ठीक है, तो उसका कोई आवाज, अशब्दता अगर उसमें निर्माण होती है तो वो मृदु पाक कहलाया जाता है। उसमें अगर हल्का सा पानी का प्रमाण अगर रहता है, बहुत ही हल्का सा चरचरापन रहता है, स्मेल नहीं रहता है, मृदु रहता है, चिपचिपा रहता है, तो मध्यम पाक कहलाता है। खरपाक उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है, थोड़ा रुक्षता रहता है, वो तुरंत जलता है, तुरंत जल जाता है। हाँ, ऐसी अवस्था में ये खरपाक बनता है। तो क्या खरपाक इस्तेमाल नहीं होता? क्या खरपाक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? नहीं, हम कर सकते हैं। हम खरपाक भी इस्तेमाल होता है। खरपाक का जो तेल होता है, खरपाक का जो तेल है, वो उद्वर्तन के लिए, लेपम के लिए, वजन कम करने के लिए, हाँ, इस प्रकार से खरपाक, त्रिफलादि तेल का मोस्टली बाह्यंतर जो स्नेहन किया जाता है वो खरपाक के मात्रा से ही बनाया जाता है। वजन कम करने के लिए जो उद्वर्तन तेल इस्तेमाल होता है, वो उद्वर्तन तेल में त्रिफला, वचा, खदीर, हाँ, इन प्रकार की वनस्पतियों से बनाया हुआ ये तेल हल्का सा खरपाक बनाया जाता है, जो वजन कम करने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण और काम करता है, उतना ही ये काम करते हुए दिखाई देता है। और मृदु और मध्य पाक के जो होते हैं वो मोस्टली आभ्यंतर, बस्ती के लिए, आभ्यंतर लेने के लिए, खाने के लिए, नाक में डालने के लिए, ये मृदु मध्य के तेल जो है या घृत जो है, वसा जो है, इन स्नेहों का इस्तेमाल आभ्यंतर पान के लिए मृदु मध्यों का करना होता है।
तो जब भी आप कोई तेल इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर ध्यान से देखो। अगर कोई घी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज ओनली, इसके बारे में ध्यान से पढ़ो और तो ही उसका इस्तेमाल करो। नहीं तो वो सिर्फ बाह्यंतर मार्ग के लिए इस्तेमाल करने को कहा गया है और फिर उसका आप इंटरनल यूज कर रहे हो तो पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्नेह किसको देना चाहिए, स्नेह किसको नहीं देना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई है। उसको बारे में हम बात करके आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करेंगे कि स्नेह जिन लोगों को वमन करवाना है, जिन लोगों को विरेचन करवाना है, जिन लोगों को बस्ती देना है, उनको आप स्नेहपान दे सकते हैं। जिन लोगों का शरीर रुक्ष हुआ है, जो लोग अत्यधिक मात्रा में व्यायाम करते हैं, रोज व्यायाम करते, देखो व्यायाम दो प्रकार के हैं, व्यायाम और व्ययाय, व्यवाय, व्यवाय। ठीक है, आज के जमाने में दो प्रकार के व्यायाम बहुत हो रहे हैं। एक तो अति व्यायाम जो शारीरिक कष्ट करते हैं और एक अति व्यवाय। उसके कारण भी जो होता है वो भी शारीरिक श्रम ही है। शुक्र धातु अत्यधिक मात्रा में बाहर जाने से उत्पन्न होने वाला वात प्रकोप और जिससे कारण उत्पन्न होने वाला प्रमेह, ध्यान में रखो, मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनो। अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाले व्यवाय के कारण उत्पन्न होने वाला वात प्रकोप, ये वायु के कारण उत्पन्न होने वाला वातज प्रमेह, ये वायु के कारण उत्पन्न होने वाला अंश शूल या मन्या धातु दुष्टि या आमवात या कोई भी वात व्याधि, ये अति व्यवाय के कारण उत्पन्न होने वाला है। उधर भी स्नेहपान उतना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उनको भी स्नेहपान देना बहुत जरूरी है। और जो अत्यधिक कष्ट करते हैं उनको तो स्नेहपान देना जरूरी है। जिनको वमन देना है, विरेचन देना है, शोधन कर्म करना है, मैंने कहा कि उनको देना तो जरूरी है। जो अत्यधिक मात्रा में मद्यपान करते हैं दोस्तों, डेली थोड़ा थोड़ा मद्यपान जो करते हैं, जिनके लीवर में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि लीवर ही उसको मेटाबोलाइज करके, वो शुगर है। अत्यधिक मात्रा में शुगर का पान करना, मद्यपान छोड़ दो, शुगर पान कहो। अत्यधिक मात्रा में शुगर का पान करने के कारण उत्पन्न होने वाला इंसुलिन रेजिस्टेंस से उत्पन्न होने वाला प्रमेह। इधर भी वायु रेजिस्टेंस माने अवरोध, इस अवरोध को निर्माण करने वाला वायु है। वायु प्रमेह ट्रीट करने के लिए दोस्तों आपको मैं कहूंगा कफ को तो आप ध्यान दो ही, लेकिन कफ के जो बड़े भैया है वायु, उसको आप बहुत ध्यान दो। आप कफ को निकालने के लिए वमन दोगे, विरेचन दोगे, लेकिन बस्ती देना बहुत जरूरी है। एवरी वीक प्रमेह के पेशेंट को बस्ती दो, स्नेह बस्ती दो, क्योंकि ऊपर से वो स्नेह ले नहीं रहा, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें शुगर नहीं। हर एक स्नेह युक्त पदार्थ मीठा है, तो आप उसको नीचे से स्नेह दे सकते हैं। घी का पान करने का, घी की मात्रा बस्ती दे सकते हैं, तिक्त शिर की मात्रा बस्ती दे सकते हैं, महातिक्त डाल के मात्रा बस्ती दे सकते हैं। क्योंकि प्रमेह में हर एक धातु में बाधा होती है, हर एक धातु में बाधा होती है, अस्थि को छोड़ के। मज्जा में बाधा होती है, शुक्र में बाधा होती है। ठीक है, तो अतिरुद्ध गर्भिणी, अतिरुद्ध स्त्रियाएं और 12 साल के पहले बच्चे जो है, 12 साल के पहले बच्चे, उनको आप शमन मात्रा में दे सकते हैं। शोधन मात्रा में 12 साल के पहले बच्चों को शोधन मात्रा में स्नेह नहीं दे सकते, ध्यान में रखो। आपके बाद 8 साल का, 9 साल का बच्चा आएगा, वजन बहुत अच्छा है, 40 किलो 50 किलो का बच्चा है, आप कहेंगे चलो दे देंगे ना, उसके कानों में तकलीफ होगी, आंखों में तकलीफ होगी, मज्जा में तकलीफ होगी, चक्कर आएगा पेशेंट को वमन के बाद, विरेचन के बाद। शास्त्र में जो कहा है 12 साल के पहले नहीं नाना नहीं, मैं तो कहता हूं 15 साल के पहले भी नहीं दो।
15 साल के बाद में ही आप उसको वमन और विरेचन के लिए ट्राई करो, नहीं तो उससे पहले नहीं। हाँ, बस्ती दे सकते हैं, बस्ती दे सकते हैं, जलोकाचरण कर सकते हैं, रक्त मोक्षण के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वमन विरेचन के लिए संभल के। तो जिन लोगों को आंखों में तकलीफ है, आंखों में तकलीफ है, तिमिर है, यानी या उसको टेरिजियम है या कैटरैक्ट है, उनको वमन मत दीजिए। जिनको टिनेटस है उनको वमन मत दीजिए, उनको विरेचन भी मत दीजिए। तो किनको नहीं करना है, ये अगर आपको समझ में आया ना, तो प्रैक्टिस बहुत आसान और सही तरीके से हो जाती है दोस्तों। प्रैक्टिस बहुत आसान और सही तरीके से हो जाती है। ये चीजें कोई नहीं बताता, आपको ये समझना पड़ेगा। बाद में फिर उसके वो व्यापद उत्पन्न होते हैं, फिर आपको तकलीफ हो जाती है कि सर क्या हो गया। जो मंदाग्नि है, जिनको छर्दी से पीड़ित है, जिनको विष से पीड़ित है, अजीर्ण है, अरुचि है, उदर रोगी है, अतिसारी है, गर्भिणी है, तृष्णा पीड़ित है, आम से बाधित है, तरुण ज्वर है, जिनको वमन दिया है, जिनको विरेचन दिया है, जिनको बस्ती दिया हुआ है, जिनको उरुस्तंभ है, जिनको अति तीक्ष्णाग्नि है, इनको मत दीजिए। लेकिन मैं एक आपको सादा सिंपल बोलता हूं, ये सब अपने को समझ में आ जाता है। जो अति क्रोधित है, जो अति भित्रा है, भित्रा मराठी शब्द है, ये डरता है, जो अत्यधिक चंचल है, जो अत्यधिक क्रोधित है, जो अत्यधिक कामुक है, कामुक, और जो अत्यधिक मात्रा में डेस्परेट है कि मुझे ये अभी करना ही है, इनको कोई भी शोधन प्रक्रिया ना करे। और अगर करे तो प्रॉपर कंसर्ट और प्रॉपर प्रिपरेशन, उनको सब चीजें बता के कि आगे जाके ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो ही दो, नहीं तो ना दो। अति कामुक, अति क्रोधित, और जो रुग्ण, एक और बात, जो रुग्ण पहले दिन से ही वैद्य के ऊपर भरोसा नहीं रखता, डाउट रखता है, होगा क्या, कितना टाइम लगेगा, होगा कि नहीं होगा, उन रुग्णों को भी शोधन ना दे। समझ में आया? तो ये बात तो हुई दोस्तों। अगले सेशन में, गुरुवार के सेशन में, हम स्नेह को ही थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म करेंगे और स्वेदन के चैप्टर को हम आगे जाके बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो। अगर आपके कोई भी सवाल अगर है तो मुझे आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हमारा पंचकर्म का व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आप इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और बात, आप कोई भी केस डालना चाहते हैं तो उसके सिम्टम्स लिख के मैं क्या कोई भी आपको बता नहीं पाएगा। अगर आप कोई भी केस के ऊपर बात करना चाहते हैं तो पहले तो उसके सिम्टम्स लिखो, उसके सिम्टम्स के अनुसार उसके शरीर में कौन कौन से धातु की दृष्टि हुई है ये आपको लगता है वो लिखो, कि सर मुझे लगता है कि इसके रस में, रक्त में, मांस में, मेद में दृष्टि है, सर मुझे ये लगता है कि इसके ये दोषों में बाधा है, इसके प्राणवायु में, समान में, अपान में दृष्टि है, इसके पाचक पित्त में, भ्राजक पित्त में दृष्टि है, इसके क्लेदक कफ में, बोधक कफ में दृष्टि लग रही है, सर मेरा निदान नहीं हुआ है, क्या दवाई दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलेगा, निदान नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आपको उसके कौन से दोष की दृष्टि हुई, कौन से धातु की दृष्टि हुई, कौन से मल की दृष्टि हुई, और इसके सिम्टम्स क्या है, और उसकी क्या अवस्था आपको लग रही है, क्या ये क्षय की अवस्था है, क्या ये अवरोध की अवस्था है, ये आप लिखो तो ही हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखो, ठीक है।
स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद। थैंक यू सर।